दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે સુખની શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. મનથી પણ કોઈ જીવનો બુરો વિચારે ના હોજો રે. મનથી પણ કોઈ જીવનો બુરો વિચારે ના હોજો રે. સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિત્ત મન હોજો રે. સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિત્ત મન હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. વાનીથી શીતલ માધુરી બેલાડે તે મોટો રે. વાનીથી શીતલ માધુરી બેલાડે તે મોટો રે. લોકોની સુખ આપે તેવા કાયાંતે જુક જોશો રે. લોકોની સુખ આપે તેવા કાયાંતે જુક જોશો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. લક્ષ્મી ગમને તે ધંધામાં મેલવનારો પુણ્યો રે. લક્ષ્મી ગમને તે ધંધામાં મેલવનારો પુણ્યો રે. પુણ્યોપાજક સત્સંગ માર્ગે કરછે ધનની દોષો રે. પુણ્યોપાજક સત્સંગ માર્ગે કરજે ધનને દોષો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. હું જાતિ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ જોતું હોજો રે. હું જાતિ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ જોતો હોજો રે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદરનો ખોરે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદરનો ખોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને
सुख ने शांति हो जो रे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नौ कलम बोलिए। हैप्पी बर्थडे खुशी। आज मेरा बर्थडे नहीं है। आपको आप जब अच्छा ड्रेस पहनती है हम तो बोलेगा आपको हैप्पी बर्थडे बोले। मोनिका तो कभी नहीं बोलता, उसको तो मालूम ही नहीं क्या ड्रेस करनी। ओके, नौ कलम बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનો સાથે ક્યારે હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનો સાથે માત્ર પણ અહમ ના દુબે ના દુબાય કે જુવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સાદ્વાદ વાણી, સાદ્વાદ વતન અને સાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે ન દુબાય કે દુબોવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનો ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો अवनवाद, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ ધર્મ હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ના કિયા જાય ના કરવાયા જાય કે કર્તા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા ન બોલી જાય, ન બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા के प्रति स्त्री पुरुष अगर नपुंसक गमे ते लिंग धारी होय तो तेना संबंधમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તમાનપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેનારો કોઈનો એક કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। छोटी श्रीमत बुलाए हम आपको फॉलो करेंगे। जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो वसायानम, नमो लोए सवसावनम, नमो लोए सवसावनम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सर्व पावपनाशनो, सर्व पावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेषां, मंगलानं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Very good. Daily prayer. Daily prayer बोलो। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन कार्यों और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Daily prayer. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसे आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। Okay. छोटी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। मैं आपके बच्चे। मैं आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे फिर भी हैं कच्चे। फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, क्या होमवर्क था? खुशी? आज हमने मम्मी को कितनी दफा गॉड के रूप में माना। क्या बोला? आज हमने हमारी मम्मी के अंदर भगवान देखा कि नहीं। ओके ओके, वेरी गुड। भगवान क्या होता है, इसको मालूम है? शहजादा को नहीं मालूम है, कौन सिखा? शहजादा को सिखाएगा? मोनिका? जो भी जीवात्मा है उसके अंदर भगवान विराजमान है। क्या भगवान क्या है? आपके सामने भगवान आएगा तो कैसे पहचान? क्या मालूम कि भगवान आए? नहीं, वो सूर्या, आपको भगवान आएगा तो मालूम पड़ेगा भगवान आ गया? नहीं तो भगवान तो मम्मी में भगवान कैसे देखेगा? देखो शैलेश दादा, कल कांति दादा आए थे तो उसमें अभी हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस चल रहा है, एंड ऑल्सो कि मम्मी का वैल्यू क्या है। तो कांति दादा ने बोला मम्मी तो भगवान जैसी होती, तो बातें करो थोड़ी कि भगवान क्या होता है, मम्मी में कैसे भगवान देख सकते हैं। और एक मिनट देखा था आपने, किसने देखा, कितनी दफा देखा था मम्मी में भगवान? बोलो जल्दी जल्दी। नहीं देखा था, नहीं देखा था खुशी?
नो ओके किसी ने नहीं देखा किसी ने होमवर्क नहीं किया शैलेश दादा बात करो जय सच्चिदानंद। पहले तो आपके अंदर आपको भगवान है ऐसा महसूस होता है? आप खुद के अंदर खुशी, मोनिका, करिश्मा, श्रिया, अंदर तो रोज प्रार्थना तो बोलते हैं सेपरेशन प्रेयर, ये शुद्धात्मा भगवान आप अलग है, मोनिका अलग है, आप परमानेंट है, मोनिका टेम्पररी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। तो आपके अंदर शुद्धात्मा भगवान है, वो आपको यकीन, पूरा भरोसा है, खातरी है कि नहीं है? तो फिर वो चक्षु से हम औरों में भी जब भगवान दो अपेक्षा से देखते हैं, एक अंतर चक्षु से निश्चय की दृष्टि, रियल व्यू पॉइंट से जो शुद्धात्मा देखेंगे तो वो शुद्ध है ना, अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले हैं, अनंत शक्ति वाले हैं, अनंत सुख का धाम है, अविनाशी है। जैसे हमारे में है ऐसे हमारी मम्मी में भी जो शुद्धात्मा भगवान है रियल व्यू पॉइंट से, वो अनंत ज्ञान वाले, अनंत दर्शन वाले है कि नहीं है? है। अच्छा, तो ये मैं एक रियल व्यू पॉइंट की बात हुई। तो दादा भगवान बताते हैं ना कि जो रियल हमारा स्वरूप है, जो शुद्धात्मा स्वरूप है, वो दादा भगवान जैसा ही शुद्ध है, महावीर भगवान जैसा शुद्ध है, जो सबदेव भगवान जैसा शुद्ध है, सिमंदर स्वामी जैसा शुद्ध है। तो अच्छा, दूसरा बात यह है कि रियल या शुद्धात्मा या भगवान देखने से क्या फायदा होता है? आपने कभी सोचा? किसी में भी आप रिलेटिव रियल से अंदर के चक्षु से शुद्धात्मा का दर्शन करोगे भगवान का, तो आपको क्या फायदा होगा और सामने वाले को क्या फायदा होगा? आपको कुछ फायदा होगा श्रिया? होगा। क्या क्या फायदा होगा? वो व्यवहार हमारे से और अच्छे से बात कर सकेंगे। हाँ व्यवहार वो अच्छा होगा। हाँ बरोबर है, अच्छे से बात कर सकेंगे, व्यवहार अच्छा होगा, मगर उसके पहले क्या होगा? आपके अंदर के शुद्धात्मा भगवान खुश हो जाएंगे, आपको आनंद मिलेगा, शुद्धात्मा का शुद्ध आनंद बढ़ेगा आपका। हाँ। हाँ, जैसे ही हम दूसरों में शुद्धात्मा के दर्शन करते हैं, हमारे शुद्धात्मा भगवान खुले होते हैं, उसका हमें आनंद का, शुद्ध आनंद का लाभ हमें पहले मिलता है। और जिनमें हम शुद्धात्मा देखते हैं उनको भी हमारे प्रति अच्छा भाव खड़ा होता है। क्या होता है? अच्छा, ये हुई रियल दृष्टि से शुद्धात्मा या भगवान देखने की बात। व्यवहार दृष्टि से मम्मी में कैसे भगवान देखेंगे? तो ये तो मम्मी और भगवान, ये मम्मी तो व्यवहार दृष्टि से है ना, तो भगवान जो आपकी कल्पना में, आपकी समझ में है, वो क्या है कि जिनमें सर्वोत्कृष्ट गुण प्रकट हुए हैं, भगवत गुण बोलते हैं जिसको, जो आम मनुष्यों में नहीं होते हैं, ऐसे जिनमें गुण है। तो मम्मी हमारे लिए आम मनुष्यों से ज्यादा है कि कम है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि आम मनुष्य तो हमारे साथ अपना स्वार्थ रखेंगे, उनका फायदा होगा तो ही व्यवहार करेंगे, टिट फॉर टैट करेंगे। और मम्मी तो अपना नहीं देखते हुए भी हमारे लिए करेगी कि नहीं करेगी? पहले आपका देखेगी कि पहले उसका खुद का देखेगी? हाँ, तो हमारे लिए, हर एक बच्चे के लिए मम्मी भगवान जैसी या भगवान से भी अधिक है व्यवहार दृष्टि से, क्योंकि वो निस्वार्थ निष्कारण प्रेम से हमारे लिए ही सब कुछ जीवन बसर कर देती है। वो खुद का नहीं देखती है, खुद भूखी रहती है, बच्चों को पहले खिलाती है, खुद रात को जागती है, बच्चों को पहले सुलाती है। तो बच्चे का सुख ही मम्मी का पूरा जीवन है, और उसमें उसका तनिक भी स्वार्थ होता है क्या? हाँ या ना? बोलो ना। दक्ष आज बोलने का नहीं है
Coral, बोले Shreya, दादा ने स्वार्थ मैंने खुद का रिलेटिव कंसिडरेशन होता है क्या? नहीं। दादा तो इसलिए दादा भगवान ने भी बोला था कि शुद्ध प्रेम एक परमात्मा में दिखाई देता है और दूसरा मम्मी में होता है व्यवहार से। ये दो ही शुद्ध प्रेम की मूर्ति होती है। हमें जो शुद्ध प्रेम, मैंने बिना कोई अपेक्षा, जो हमारे लिए जिनके दिल में पूरा प्रेम है, ऐसे दो ही होते हैं, एक परमात्मा खुद और दूसरे व्यवहार दृष्टि से मम्मी। तो ये व्यवहार दृष्टि से हम ऐसे समझेंगे तो उनमें उनको उनकी भूमिका में हमें भगवान की भूमिका का अनुभव होगा। सो निश्चय दृष्टि मैंने रियल व्यू पॉइंट से और रिलेटिव व्यू पॉइंट से, ये अपेक्षा से, दोनों अपेक्षा से हम भगवान देख सकते हैं। और उसमें पहला फायदा हमारा है, हमें आनंद मिलेगा, हमारी वृत्ति ऊर्ध्वगामी होगी, हमारे अंदर दिल को ठंडक मिलेगी, हमारा कैरेक्टर ऊपर आएगा, हमारे गुण ज्यादा प्रकट होंगे, कितने सारे फायदे होंगे और आशीर्वाद मिलेगा, वो तो अलग चीज है। तो आपको लगता है कि ये साइंटिफिक है या बिन साइंटिफिक है? ये जो चीजें हैं जो बात कर रहे हैं वो वैज्ञानिक है या सिर्फ बनी बनाई फिलॉसफी है? आपको क्या लगता है? हाँ बोलिए जरा जोर से, मुझे नहीं सुनाई देता, अब मैं बुढ़ा होने लगा हूँ। लिखा बोलो। हाँ साइंटिफिक है। हाँ, तो कोई भी चीज को हम वैज्ञानिक तौर से समझेंगे तो हमें उसको समझ में आ जाएगा कि हम फोर्सिबली नहीं कर रहे हैं, हमारे फायदे के लिए हम समझ से करते कर सक हो जाएगा, करना भी नहीं पड़ेगा। मालूम पड़ता है। तो अभी देखो ये दो दिन छुट्टी है, 3 दिन, तो ऑब्जर्व करना मम्मी का गुण, आपने कितना क्या क्या अच्छा देखा और कितनी दफा भगवान देखा। ओके, दैट इज योर होमवर्क। ओके ओके, अभी जैसे शैलेश दादा हम एक थोड़ा वीडियो देखेंगे अब बच्चे लोग, हाँ जी तो उसका मोरल स्टोरी क्या है वो सबको बताने का है बाद में। शैलेश दादा बताए। ओके हार्दिक। Can you see? हाँ हाँ यस। यस। हार्दिक साउंड नहीं आता है। Okay, just a second. उधर बिफोर यू पुट इन देव कुछ करना पड़ता है। यस, शेयर करना पड़ता वॉइस। Speaker. No, you have to go back, right? हार्दिक, बाहर निकल जाओ, वीडियो शुरू करने से पहले साउंड शेयरिंग का ऑप्शन है। yeah, Okay. Hardik, you have to get out and then come back before that click on the loud sound. हमको भी नहीं आता है, डॉक्टर को भी आता है। डॉक्टर Okay, share sound. एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। Mouse in the jar story. Yes. यस। A mouse was put at the top of a jar filled with grains. He was so happy to find so much food around him that he no longer felt the need to run around searching for food, and now he could happily live his life. After a few days of enjoying the grains, he reached the bottom of the jar. Now he was trapped, and he couldn't get out of it. He now has to fully depend on someone to put grains in the jar for him to survive. He also may not get the grain of his choice, and he cannot choose either.
He now has no choice but to eat what he's given. Here are 4 lessons to learn from this. 1. Short-term pleasures can lead to long-term traps. 2. If things come easy and you get comfortable, you are getting trapped into dependency. 3. When you are not using your skills, you will lose more than your skills. You lose your choices and freedom. 4. Freedom does not come easy, but can be lost quickly. 5. Nothing comes easily in life, and if it comes easily, maybe it is not worth it. Don't curse your struggles. They are your blessings in disguise. Share this story with your loved ones. Okay, what is the moral of the story? कौन बोलेगा पहले? Daksh. अपन को कोई भी चीज इजीली नहीं मिलती है. Is what? Willing to? अपन को कोई भी चीज इजीली नहीं मिलती है. नहीं मिलती है. Okay. Shreya? अपन को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. Yes, that was missing part. Thanks for completing that. Shreya? जब साउंड नहीं आता है तब साउंड करो, तब किसे मोनिका से स्टार्ट करेगा. मोनिका? मुझे ये समझना है कि जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए वो ट्रैप हो जाएगा और हम हमारी फ्रीडम को खो देंगे और हम मतलब उसके साथ स्किल्स हमारी डेवलप भी नहीं होगी, जो स्किल्स है वो भी नहीं कर पाएंगे. वेरी गुड. खुशी? हमें जो भी इजीली मिलता है वो हमारे लिए ट्रैप होता है. तो अभी तो सब इजीली मिलता है, पापा मामा देता है, इसलिए सब लेजी हो जाता है. राइट? ये भी मेरा ट्रैप ही है. मुझे ट्रैप ओके शेहज़ादा, अब थोड़ा बताइए. बहुत मार्मिक स्टोरी लेके आए जो भी जिन्होंने भी ढूंढी. वेरी गुड. छोटी बात, महत्व की बात कि भाई जब हम में लगता है कि हमें बहुत मिल गया मुफ्त में. दादाजी का एक सेंटेंस है ना, मुफ्त सबसे महंगा होता है. क्या होता है? क्योंकि मुफ्त या इजीली मिला तो हम फिर उसके आगे पीछे सोचते नहीं, उसमें लालची हो जाते हैं, उसके भुगतान में लगते हैं, मेहनत भूल जाते हैं. स्किल्स तो चले जाते हैं मगर स्किल्स अकेला नहीं लॉस होता है, बताया ना, चॉइस और फ्रीडम भी चली जाती है, कई बार ट्रैप हो जाते हैं. सो दादाजी बोलते थे कि हम तो पहले से देखते आते थे कि इसका परिणाम क्या होगा, हमारा मन नहीं बिगड़ने देते थे. तो ये इसका स्टोरी, मोरल का स्टोरी, बहुत सारी चीज उसमें से उसने 4, 5, 6 लेसन्स तो स्टोरी में खुद आ गए हैं कि भाई डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू एनी इजी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस. और हम सबका कैसा है अभी, मन कैसा है? सच्ची बताओ. इजी लाइफ. एक रियल लाइफ स्टोरी बोलता हूँ. एक बच्चा था, 11वीं 12वीं में पढ़ता था. तो उसके रिलेटिव्स जो फॉरेन में थे तो बड़ा महंगा आईफोन दे दिया, गिफ्ट दे दिया. मतलब खुश हो गया, सबको दिखाता फिरता था कि देखो मेरे पास 50,000 का आईफोन है, ये है वो है क्या नहीं. तो फिर उसका चित आईफोन में इतना फंसा, परीक्षा में मार्क ही नहीं आए अच्छे. फिर एडमिशन कहाँ मिले, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. तो और दूसरी कहानी ऐसी है कि हमारे एक बहुत बड़े एमडी, बड़ौदा के फेमस एमडी थे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस, सिटी के टॉपर्स में थे. मगर उनकी लड़की जब एमबीबीएस पढ़ रही थी तो उन्होंने स्कूटर भी नहीं दिया था, साइकिल पर आती थी, साइकिल पर जाती थी. स्कूटी या स्कूटर तब दिया जब वो एमबीबीएस पास हो गए, इंटर्नशिप करने लगी. क्यों? क्योंकि एनी इजी luxury would distract her from her studies
and she will not realize the value of the things. तो खुद के पास पैसे होने के बावजूद भी ट्रेनिंग के लिए खुद की लड़की को साइकिल पर भेजते थे पूरा MBBS खत्म होने तक। तो ये तो हमारे आसपास हर जगह बनता रहता है कि जिनको हमारे पर प्रेम है, यदि वो हमें इजीली चीज दे दे तो फिर हमारा प्रोग्रेस नहीं मगर रिग्रेस होने की पूरी संभावना है, सिवा कि हम इतने समझदार हैं कि ये क्या है, हमारी मेहनत से हमने पाया है, क्या हमारी मेहनत से हम इतना कमा के ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, जब मैं कमाऊंगा तब लूंगा। बोलने का है? मोनिका, खुशी क्या सोच रही है? खुशी बहुत सोच रही है। नहीं, क्योंकि इसमें कुछ बोल सके ऐसा है ही नहीं किसी के पास है। सब बिजी लाइफ वाले हैं ना। ऑनेस्टली है किसी के पास? नहीं है। सो थिंक ओवर क्या है। That second homework is और दूसरी चीज कि इजीली किसी का दिया हुआ कितना दिन चलेगा, चूहे को दिया ग्रेन्स, खत्म हो गया खाते खाते। तो जो भी हम कंज्यूम करते हैं, दादाजी तो ऐसा बोलते थे, हमारी पुण्य ही हम इस्तेमाल कर देते हैं। उससे पहले हमें सोचना है कि हम नया जनरेट कैसे करें ताकि हमारा स्टॉक खत्म न हो जाए। चलो आगे चले। ठीक है, तो सेकंड होमवर्क ये प्लीज रिव्यू दिस 4-5 टाइम्स एंड उसमें आपको लेसन्स क्या मिले, लेसन्स लर्न आपके लिए क्या है वो जरा मंडे शेयर करना। बिकॉज अभी तो शैलेश दादा वी कैन टॉक एंड टॉक एंड टॉक, इसमें तो देखो शैलेश दादा आप MBBS में गए तो आपके पास पेंस कितना था? शैलेश दादा के पास छोटा था, 2 ही पेंस था। चलो स्कूल में जब तक पढ़ाई करते थे तब सैटरडे को यूनिफॉर्म धोने का, संडे को पहनने का 2 ही था। वो स्टिचेस वो फट गया तो स्टिच करने का, जो भी करने का सब कुछ ऐसा था। और देखो अब अभी वो डॉक्टर बन गया। और MBBS में पढ़ने को गया था, साइकिल भी नहीं थी, दौड़ते दौड़ते बस पकड़ने का, बस से जाने का, बस से आने का। फिर मुश्किल से सेकंड हैंड साइकिल आई तो 2 बार चेन उतर जाती थी जाते जाते, फिर चढ़ाने का फिर जाने का। ऐसे करते करते पहला ल्यूना तब आया जब मेरा इंटर्नशिप का खुद का सैलरी आया, तब जाके पहला ल्यूना आया, वो भी सेकंड हैंड ल्यूना। फिर जाके कुछ समय के बाद प्रैक्टिस चालू किया, फिर बाद में 2 व्हीलर आया, और 4 व्हीलर तो प्रैक्टिस के बहुत सालों के बाद आया, 12 साल के बाद आया। ये सबकी But that was a nice thing. Yes. yes. ये तो सबकी स्टोरी, हमारी भी सब स्टोरी है, अब मैंने nothing was available, so you had to go। हमका छोटे थे तो छोटे गांव में था तो लाइट नहीं था। Yes. my responsibility थी, छोटा है सबको 4-5 रूम में फानस करने का, ये करने का, टॉर्च अच्छा है, so that was all my duty, so हम भी तो वो बहुत गैस्टर के फानस से पढ़े। और एक्सपर्ट होना का है वो, ये सब हाउ टू ये फानस में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो सब सीखना पड़ा। So you have to earn your things. You have to work hard and earn your things. आप खुद की मेहनत से अचीव करते हो उसका वैल्यू बहुत बड़ा है। ठीक है, पुण्य से मिल जाता है, बट देन टेल योरसेल्फ, दादा भगवान नहीं बताते थे कि भाई मैं घर में इतना ही पैसा देता था कि नौकरी पर मैं नौकरी करता तो कितना मुझे मिलता, उतना ही मैं उसका इस्तेमाल या उपभोग करूंगा, बाकी घर नहीं ले जाते थे। ये सब चलो आपका तो क्या अभी तो धंधा है, स्टडी। That is the only thing you are really पुण्यशाली है। right। Oh, you have to make use of it। वो बोला नहीं, don't आपके हाथ हैंडकफ में मत डालो,
that is it. Okay, anyway, look at it, okay, and have a good weekend. और जरा ये सोचना, please don't forget this two homework. Okay, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.